Now, in the branch chain hydrocarbons, when their naming is done, then how to select the longest chain, that we will continue here. Now, if suppose we are having this structure, now we will first of all complete all the octet of the carbon, and then we will try to write the name of this compound. So विद द एग्ज़ाम्पल इट विल बी क्लियर टू यू. अब देखिए, जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास, तो इसमें हमने क्या है कि क्योंकि इसमें ब्रांच चेन अवेलेबल है, तो हमने इसकी नंबरिंग करनी है. सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए अगर हम काउंटिंग इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है हमारे पास जो है टोटल लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड्स की है. और इसमें जो है ये जो हमारे पास ग्रुप है जो हमने डिस्कस किया था, एक एल्काइल ग्रुप है. तो ये एल्काइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है. तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, तो टोटल नंबर कार्बन कितने हैं 7. तो 7 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रूट वर्ड, दैट इज़ हेप्ट. And because all the bond here are single bond, so naturally it is a alkane. So alkane का एन वर्ड जो है हमारा प्राइमरी सफिक्स आ गया. ये हमारा आ गया जो है आपके पास प्राइमरी सफिक्स, तो हेप्टेन बन गया. अब क्योंकि ये जो ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है ये हमारा प्रीफिक्स है, तो इसको हमने जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1. सो दैट इज़ मीथेन से करस्पॉन्डिंग जो है ये एल्काइल ग्रुप बना. मीथेन में से हमने क्या किया, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो हमारे पास जो ग्रुप बनता है दैट इज़ मिथाइल. सो दिस इज़ ए प्राइमरी प्रीफिक्स which will be attached. So at what position it is, at number 4. So we will indicate the position 4 methyl and heptane. It is the complete name of this compound. So in the branch compound, how we have to write, is it clear to you? We will take the more example also in the our next example. Let us take another example. We are having the compound, and now you have to write the name of this compound. Now, how to write the name of this compound, we have to see. First of all, what we will do, we will give the numbering to the compound. Now 1 2 3 we have given the numbering. So longest chain is here of 3, then its root word will be prop. And because all are carbon single bond are available, so the primary suffix will be ane, propane. And now this group methyl group is attached to the 2 number carbon, so its name will be 2 methyl propane. I think it is clear to you how to write the name of a branch compound. Let us take another example. Now see, in this compound, let us first give the numbering, so that numbering will be given in such a manner that if the substituent is there, that must be given the minimum number. So 1 2 3 4 5, total number of carbons are 5. So the root word will be pent. Primary suffix, because all the carbon single bond, so ane. And what is the prefix here, that is methyl, that is, and it is attached to the second carbon. So first of all we will write the prefix is 2 methyl
and then root word is pent and the suffix is -ene. So the complete name of this compound is 2-methylpentane. अब मुझे लगता है कि आप किसी भी जो है ब्रांच चेन कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। चलिए और हम ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास किसी जो है हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए तो हमने उसका नाम कैसे लिखना है। डबल बॉन्ड ये इंडिकेट करता है, देखिए यहाँ एक डबल बॉन्ड है कि दैट इज इट इज बिलोंग टू द एल्कीन फैमिली। तो नेचुरली है, यहाँ पर हमारे पास रूट वर्ड पहले हम देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए हमें ये भी रूल याद रखना है कि जो है हमारे पास जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनको मिनिमम नंबर दें। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग आ गई। इट मीन्स हमारे पास रूट वर्ड हमारे पास क्या है, रूट वर्ड इज हेक्स, 6 कार्बन्स। Now because of the presence of double bond the primary suffix will be -ene, and what is the group which is not counted in this numbering, that is this is containing the number of carbon atom 2, that is ethyl group. now ethyl इथेन से बना, जैसे देखिए इथेन का फॉर्मूला है C2H6। अगर इसमें से हमने एक हाइड्रोजन कम कर दी तो हमारे पास आ जाता है C2H5। सो इट इज़ इथेन से इथाइल। तो हमारे पास प्रीफिक्स आ गया यहाँ पर इथाइल, और ये किस पोजीशन पे 3 नंबर कार्बन पर अटैच्ड है, तो इसका नाम आ जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। Is it clear how to write if the unsaturated hydrocarbon is present there? Now next our rule is the lowest number rule. Now what do you mean by the lowest number rule? Means अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन में कहीं पे जो है सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है तो उन सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने लोवेस्ट नंबर देना होता है पॉसिबल हो जब हम जो है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए इसमें आप देखिए कि ये फर्स्ट फिगर में देखिए कि हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को हमारे पास सेकंड नंबर मिल रहा है। और अगर इसी को हम नंबरिंग करें इस वे में कि फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, राइट से लेफ़्ट की तरफ चले, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट को हमारे पास नंबरिंग आ रही है 4। तो लोएस्ट रूल ये कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट द लोएस्ट, सो दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। सो द करेक्ट नंबरिंग विल बी दैट वी हैव टू गिव द लोएस्ट number to the longest chain so that substituents acquire the lowest number. Now if we are having more than prefixes, one prefixes, or say it may be same kind or different one, कि अल्काइल ग्रुप ऐसा अटैच्ड है जिसमें जो है अगर सेम काइंड का अल्काइल ग्रुप है तो हम 2 अटैच्ड हैं तो डाई वर्ड यूज़ करते हैं, अगर 3 अटैच्ड हैं तो ट्राई वर्ड हमने यूज़ करना होता है। जैसे देखिए ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमारे पास देखिए 2 जो है हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक 2 नंबर कार्बन पे और एक 3 नंबर पे। तो अब इसका नाम लिखते हुए हमने क्या करना है, पहले तो हमने नंबरिंग दी 1 2 3 4, और 2 और 3 पे जो है तो हमारे पास क्या है 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डाई मिथाइल। और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन हमारी 4 की है तो इट विल बी द नेम विल बी ब्यूटेन। तो ये क्लियर आपको कि अगर हमारा सेम काइंड का अल्काइल ग्रुप जो है अटैच्ड है आपके, तो हमें उसमें डाई या ट्राई जो है अप्लाई करना